Good morning, students. Today we will continue our chapter 5, that is where does it come from. And now students, in previous video we were studied about agriculture crops. It is two types, cash crop and subsistence crop. In cash crops, crops that are grown for sale to make a profit, we call it cash crop. And subsistence crops, crops grown for use by the farmer and his family or to be fed to livestock. It's called it subsistence crop. Now students, I am on page number 55. Here is the map 5.2. Look at the map and complete the given sentences. What is here? Look at the map and complete the given sentence. Now, first question. Cash crops grown in Madhya Pradesh are. कैश क्रॉप्स जो कैश क्रॉप मध्य प्रदेश में ग्रोन होती है उसका नाम बताना है. इट इज कॉटन. COTTON, cotton. Cotton crops grown in Madhya Pradesh. Now second, states that cultivate sugarcane are. Cultivate means grow. States that cultivate sugarcane, वो स्टेट बताने हैं जहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है शुगर केन यानी ग्रो किया जाता है. सो इन सेकंड क्वेश्चन आंसर इज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. In second question, answer is Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Now, third, the northeastern state known for tea cultivation is. नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट कौन सा है जहाँ पर प्लाइंग की जाती है, खेती की जाती है टी की? आंसर इज असम. ASSAM, असम. ओके स्टूडेंट. नाउ इन फर्स्ट कॉटन, इन सेकेंड उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. नाउ इन थर्ड असम. ASSAM, असम. Clear to all? Okay, now then move on next page. Now fourth question is here. Two crops widely cultivated in Tamil Nadu are. कल्टिवेटेड किए जाते हैं टू क्रॉप्स, ज़्यादा संख्या में कल्टीवेट की जाती हैं, ग्रोन की जाती हैं तमिलनाडु में. कौन सी क्रॉप्स हैं? कॉटन एंड शुगर केन. कॉटन एंड शुगर केन. नाउ इन फिफ्थ, क्लासिफाई द क्रॉप्स शो इन फिगर 1 इन दिस टेबल. Food crops, non-food crops, cash crops. Okay, the food crops, sugar cane, wheat, tea. Or fourth or fifth, write it down yourself. 3, sugar cane, wheat, tea. Fourth or fifth, write it down yourself. Non-food crops, cotton, rubber. Write down yourself. Non-food crops. First, you are write it down yourself. Food crops, sugarcane like wheat, tea, etc., etc. Non-food crops, cotton, rubber, etc., etc. Now student, cash crop. Cotton, sugarcane, rubber, tea, wheat. These are the cash crops. Cotton, sugarcane, rubber, tea, wheat. These are the cash crop. Okay, so in fifth, classify the crop shown in figure 1 in this table. Food crops and non-food crops नाम लिखने हैं यहाँ आपको. Food crops like sugarcane, wheat, tea, etc. and non-food crops cotton, rubber, etc. Cash crops cotton, sugarcane, rubber, tea, wheat. These are the cash crops.
Animal rearing is an important part of agriculture. Animal rearing means पशुपालन. पशुपालन एक इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन. वी गेट मिल्क, एग्स एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स. हमें क्या क्या मिलता है एनिमल से स्टूडेंट? मिल्क, एग्स एंड वूल. और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बट मेनली मिल्क, एग्स एंड वूल. दीज आर यूज एज रॉ मटेरियल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. दीज आर यूज एज रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स यानी कच्ची धातु डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम आती है, यूज की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लीस. व्हाट इज फ्लीस? फ्लीस, sheep hair is the raw materials. ये raw material है. to make wool, sweaters and shawls are made from wool. ये raw materials इसलिए है क्योंकि शिप के हेयर जो है वो वुल, उनकी वुल बनती है और फिर स्वेटर एंड शॉल उनसे बनाए जाते हैं. सो स्टूडेंट, एनिमल्स, sheep, in second cow, goat, fallow, and in third chicken. So raw materials wool, milk, meat and egg. Industry कौन सी है? wool, dairy and food. What is the dairy? The dairy industry processes raw milk from cows, donkeys, goats, sheep and camels. रॉ मटेरियल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रॉ मटेरियल्स? रॉ मटेरियल्स यानी होता है ग्रे गुड्स या रॉ प्रोड्यूस. इट मीन्स कच्ची सामग्री यानी कच्चा माल. अब एग है, मिल्क है, ये कच्चा सामान नहीं है. बट वुल जो है इट इज़ ए रॉ मटेरियल, ये कच्चा सामान है. इससे फिर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे स्वेटर है, शॉल है. ये ईट करने के काम नहीं आता. दैट्स व्हाई वी सेइंग इट रॉ मटेरियल्स. एंड सो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल इट मीन्स ग्रे गुड्स और रॉ प्रोड्यूस, कच्चा माल या कच्ची सामग्री. इसे इंग्लिश में रॉ मटेरियल्स कहा जाता है. इंग्लिश में हम इसे सेम वर्ड इज सिनोनिम इज ग्रे गुड्स and raw produce. Okay, these are the synonym of raw materials. Got it? Now student, this is the dairy industry. Process raw milk from cows, donkeys, goat, sheep and camels. यहाँ रॉ जो डेयरी इंडस्ट्री है, जहाँ पे डेयरी होती है, यहाँ से हम दूध लेते हैं. यहाँ पे प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है यहाँ पर, जहाँ से दूध निकाला जाता है, उसको सेल किया जाता है, उसे डेयरी इंडस्ट्री बोला जाता है. नाउ देन स्टूडेंट, मूव ऑन नेक्स्ट पेज. प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क कम फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री. नेम सम डेयरी प्रोडक्ट्स यू यूज एट होम. ओके, प्रोडक्ट्स राइट करने हैं. मेड फ्रॉम मिल्क फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री. नेम सम डेयरी प्रोडक्ट. अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के नेम बताने हैं जो हम घर में काम लेते हैं. ओके, लाइक टेल मी. कर्ड, बटर मिल्क, घी, पनीर एक्सेट्रा. कर्ड, बटर मिल्क, घी, पनीर. दीज आर द डेयरी प्रोडक्ट्स we use at home. Okay, which one? Curd, buttermilk, ghee and paneer. These are the dairy products we use at home. Now student, in 5A, any dish you eat is made of raw materials. List the raw materials used in making a dish. ऐसी कोई डिश है जो हम ईट करते हैं जो रॉ मटेरियल से बनी हुई होती है. लिस्ट द रॉ मटेरियल्स. आपको रॉ मटेरियल्स का नेम बताना है और डिश का नाम बताना है कि कौन सी वो डिश है. ओके, एंड देन माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री. माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग जो माइनिंग पे निर्भर होते हैं, माइनिंग पर आधारित होते हैं. माइनिंग क्या होता है? माइनिंग यानी होती है जिन्हें
खुदाई करके फिर निकाला जाता है, इट मीन्स माइंस में से निकाला जाता है, उसे माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, यानी खनन आधारित उद्योग। माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री इज अ सोर्स फॉर रॉ मटेरियल्स। माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री एक सोर्स है, एक साधन है, एक टूल्स है रॉ मटेरियल्स का। द इंडस्ट्री हेल्प्स डिग आउट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अंडर द अर्थ। खुदाई करके अर्थ के अंदर से इन्हें निकाला जाता है, डिग आउट किया जाता है रॉ मटेरियल्स को। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ सच एज द एल्युमिनियम लैडर्स, आयरन gates, copper wires and gold jewelry are made from raw materials that the mining industry provides. Most of the things, इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, यानी हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे एल्युमिनियम लैडर्स हैं। लैडर्स यानी सीढ़ी को लैडर्स कहा जाता है, एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं। आयरन गेट्स हैं, लोहे के दरवाजे हैं। कॉपर वायर हैं, वायर्स जो कॉपर के होते हैं, आपने देखा होगा। एंड गोल्ड ज्वेलरी है जो पहनी जाती है, आपकी मॉम वेयर करते होंगे। आर मेड फ्रॉम, ये सारी चीज़ें जो है ये रॉ मटेरियल से बनी है दैट द माइनिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड। जो कहाँ से मिली है हमें, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज ने हमें प्रोवाइड करवाई है। The process by which the raw materials are dug out from the under the earth is called mining. ये एक प्रोसेस है, ये एक कार्य है, एक काम है जो लोग करते हैं। ये खुदाई करते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल्स निकाला जाता है, उसे कहा जाता है माइनिंग। ओके, द एरियाज फ्रॉम वेयर दे आर डग आउट आर कॉल्ड माइंस। जहाँ वो एरिया जहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है उसे माइंस बोलते हैं, यानी खान। डिफरेंट माइंस हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच आयरन, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और कॉपर एंड मैनी सच यूजफुल मटेरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड। इट मीन्स टेकन आउट और रिमूव। डिफरेंट माइंस, अलग अलग जो माइंस हैं, हैव रिच डिपॉजिट, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं फ्रॉम, जिसमें आयरन भी है, गोल्ड भी है, डायमंड है, सिल्वर है, कॉपर है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो यूज़फुल होते हैं सामान बनाने में, और जो टेकन आउट होते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ज़मीन के अंदर से, यानी अर्थ के अंदर से खुदाई करके। इट मीन्स ये एक प्रोसेस है बाय विच द रॉ मटेरियल्स आर डग आउट फ्रॉम अंडर द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। यानी खुदाई करके अर्थ में से जो रॉ मटेरियल, जो सामग्री निकाली जाती है, उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। और जहाँ से ये निकाली जाती है उन्हें माइंस कहा जाता है, यानी द एरियाज फ्रॉम वेयर दे आर डग आउट आर कॉल्ड माइंस एंड द प्रोसेस बाय विच द रॉ मटेरियल्स आर डग आउट from under the earth is called the mining. Okay, and mining based industry is a source for raw materials, and some raw materials are iron, gold, diamond, silver, copper, etc. These are the taken out from the earth. Done. Okay, now move on next page. It is 58. Look at the map and fill in the blanks. It is 5.4 PEP. In this PEP, look at the map. मैप हमें देखना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स को हमें कवर करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज अ पॉलिटिकल मैप। कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन लीजेंड्स आर देयर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, this is the state where copper, aluminum, gold and iron are found is one state. The state where copper, aluminum, gold and iron are found is, कौन सा स्टेट है जहाँ पर कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड आयरन मिलते हैं? झारखंड। झारखंड, JHARKHAND, इट इज झारखंड। ओके, नाउ नेक्स्ट,
Jharkhand. Now second question. Two neighboring states where gold is found are. Two neighboring states. नेबरिंग स्टेट्स बताने हैं, पड़ोसी राज्य बताने हैं जहाँ पर गोल्ड फाउंड होता है. कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. Which are this? Karnataka and Andhra Pradesh. Where is they are? Karnataka, Karnataka and Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. First answer is Jharkhand. Second, Karnataka and Andhra Pradesh. Got it? Now third question. Dash is found in the mines of Rajasthan. राजस्थान के माइंस में से क्या पाया जाता है? Dash is found in the mines of Rajasthan. Copper. What we found here? Copper. Okay. So student, 5.4 type is this. Now in first question, state is Jharkhand. In second question, two neighboring states where gold is found are Karnataka and Andhra Pradesh. In third, copper is found in the mines of Rajasthan. Okay student, clear to all? Now in this is the second part of chapter 5th. We studied about the industries, dairy industries and mines based industries. Okay student, now thank you so much for listening me students.